کرنے کے بغیر کی بیٹیوں کے لیے اور سنڈے اسکول کی ٹیچروں کے لیے، تبلہ نواز کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے، جس کو خدا نے بہت زیادہ اپنے بندہ کو برکت دے رکھی ہے۔ اسی طرح بھائی شاہد کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرنے، جن کا گلا بہت اچھا ہے اور وہ گاتے ہیں، اور ان کے جو استاد ہے ان کا فیصل آباد میں نام ہے اور باہر بھی شہروں میں اس کا نام ہے، اور وہ بھی اچھا گاتے ہیں۔ شاگرد کی استاد کی تعریف کی جاتی ہے جو وفادار ہوتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں۔ ہمارے شاگردوں میں سے، بیٹیوں میں سے اور نوجوانوں میں سے، گھرانوں میں سے کم لوگ ہیں جو زیادہ اپنے پاسبان کی عزت کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن خدا جیسے ہم اپنے استادوں کی تابعداری کریں گے تو برکت ملے گی۔ ہمارا خدا جانتا ہے کہ کس کو میں نے برکت دینی ہے اور کس نے لینی ہے۔ برکت تابعداری سے ملتی ہے۔ لیشا نے، ایلیا نے جتنی دیر بھی کام کیا، اور لیشا ایسے ان کے ساتھ رہتا تھا جیسے بیٹی کا اور لڑکے کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں، کیونکہ ایلیا اور لیشا ہر وقت اکیلے نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ دونوں ہی جس جگہ پر بھی جاتے تھے اور وہ محبت کے ساتھ جاتے تھے۔ جب وہ سامان پر بھی جانے والا تھا تو اس نے اپنے شاگرد کو کہا کہ تو میرے پیچھے نہ آ، تو مجھے چھوڑ دے، اور اس نے کہا کہ تیری حیات کی قسم میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ جو خداوند کو پہچان لیتے ہیں، خدا اپنا آپ ہر انسان کے اوپر ظاہر نہیں کرتا، لیکن ان کے اوپر ظاہر کرتا ہے جو برگزیدہ ہوتے ہیں، جو حقیقی طور پر اس کو پیار کرتے ہیں۔ چند وہاں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ سب سر خداوند کی حضوری میں جھک جائیں۔ میرے عزیز پیارے آسمانی خدا، ملک پاکستان کے لیے تیری سلامتی چاہتا ہوں، ملک پاکستان کے صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، ملک پاکستان کی آرمی کے لیے، نیوی کے لیے، رینجر کے لیے، ملک پاکستان کے سبھی جرنلوں کے لیے، ملک پاکستان کے چیف جسٹس کے لیے تیری سلامتی چاہتا ہوں، اور زندہ خدا آرمی کے نوجوانوں کے لیے تیری سلامتی چاہتا ہوں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر قادر مطلق خدا اس ملک کی دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جو دشمنوں کے سامنے اپنا سینہ تانتے ہیں۔ ان کو بچوں کی پرواہ نہیں، بیویوں کی پرواہ نہیں۔ زندہ خدا تو نے ہماری پاکستان کی آرمی کو اتنی دلیری دی ہے کہ باہر کے ملکوں میں بھی ان کا نام ہے، اور زندہ خدا ملک پاکستان کی آرمی کے لیے تیری سلامتی چاہتا ہوں، کلیسیا کے لیے تیری سلامتی چاہتا ہوں۔ تیرا صاحب اچھے قدموں سے نکما نوکر ہوں، کچھ نہیں، اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں، تو یہاں پر موجود ہے۔ تیرے روح القدس کے وسیلہ سے جب ہم کلام کو بیان کریں تو سننے والے لوگوں کو برکت ملے۔ تیرا مسا یہاں پر ٹھہر چکا ہے، تیری حضوری کے لیے، تیرے مسا کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ رحم کر، مدد کر، ہماری دعا کو سن قبول کر۔ یہ دعا تیرے اسی قادر جلالی اور وفادار ناچ مانگنے آمین۔ ہمارے ساتھ نکالیں متی کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کا کلام شروع کریں گے۔ کوئی بیٹی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتی ہے، اور بلند آواز کے ساتھ بیٹے پڑھیں، اور فقیوں فریسیوں کو خدا کیسے ڈانٹتا ہے اور کیسے وہ تربیت کرتا ہے۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں۔ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے معلم جانتے تھے، لیکن وہ روحانی باتوں کو سمجھتے بھی نہیں تھے۔ روحانی باتوں کو وہی سمجھتے ہیں جو حقیقی برگزیدہ بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں۔ بڑے بیٹے آگے بھی۔ پر جو کچھ وہ تمہیں بتائیں، اور پر جو کچھ وہ تمہیں بتائیں، وہ سب کرو اور مانو، اور سب کچھ کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو۔ اور لکھا کہ ان جیسے ان کی تعلیم کو سنو اور ان جیسے کام نہ کرو۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کرتے نہیں، اور ایسے
भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है, ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है, बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, बांध कर लोगों के कंधों पर रख देते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपना बोझ दूसरों के कंधों पर डाल देते हैं, लेकिन अपनी उंगली से भी उनको हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम और वो सब अपने काम लोगों को दिखाने को करते हैं, वो सब अपने काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। आज मेरे बहनों और भाइयों, कलीसियों के अंदर उस वक्त दरारें पड़ती है जब कोई बाहर से आकर लोग बीच घुस जाते हैं, लेकिन जब बीच में से लोग नहीं घुसते, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि तुम उनकी तालीम को सुनना और उन जैसे काम ना करना। मेरी बहनों और भाइयों, भेड़ों के दरमियान में, भेड़ों के अंदर भेड़िए कुछ ऐसे आ जाते हैं और वो भेड़ों को परगंदा कर देते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह की भेड़ें होती हैं वो किसी और जगह पर नहीं जाती, क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे और जान देने तक वफादारी से जिंदगी बसर करोगे तो तब तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। लोग आज मेरे बहनों और भाइयों सोने की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन रास्तबाजी को भूल चुके हैं। जो रास्तबाज बेटियां और बेटे बन जाते हैं, बड़े बड़े ताज आसमान पर खुदा ने उनके लिए बनाकर रखे हैं, उन लोगों के सरों पर आएंगे जो जान देने तक वफादारी से जिंदगी बसर करेंगे। और खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है कि मैं मसीह की खातिर दुनियादारी की चीजों को कूड़ा और करकट समझता हूँ, इसलिए कि वो मसीह को पहचान चुका था। मसीह हर वक्त उसकी जिंदगी के अंदर कन्वर्ट होकर रहता था, एक पल भी उनसे जुदा नहीं होता था। आज भी जो बेटे और बेटियां हकीकी तौर पर उसको मान लेते हैं और यीशु मसीह एक पल भी उनसे जुदा नहीं होता। उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बात यीशु मसीह को परखने की है, बात उसको समझने की है। खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है कि कितने हैं जो आज खुदावंद की मर्जी को समझना चाहते हैं। फिर वो आगे अपने खतूत में लिखता है कि जो मर्जी को समझना चाहते हैं वो ही समझ पाएंगे, जो समझना नहीं चाहते वो कभी समझ नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम फकीरों फरीसियों की तालीम को सुनना, उन जैसे काम ना करना। पढ़े बेटे आगे भी। वो अपने तवीज बनाते और वो अपने तवीज बनाते अपनी पोशाकों के किनारे चौड़े रखते हैं, और अपनी पोशाकों के किनारे भी चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर निस्ती और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियां, इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सी अपने लिए अलग ढूंढते हैं, और बाजारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं। बाजारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, जिसकी जिंदगी में लश्करों का खुदा रहता है और वो मोहल्ले में से गुजर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बेटियां, बेटे, बूढ़े उनको सलाम करते हैं। अगर जब हमारे अंदर क्वालिटी होगी तो तब सलाम करेंगे। और लिखा है कि दरख्त अपने फलों से, इंसान अपने कामों से जाना पहचाना जाता है। जब यीशु की क्वालिटी हमारे अंदर होगी, हम खूबसूरती से, अच्छी आवाज के साथ, अच्छे अंदाज के साथ कलाम को बयान करेंगे, मौजज़ात का काम होगा तो लोग सलाम करेंगे। क्योंकि लिखा कि दरख्त अपने फलों से, इंसान अपने कामों से जाना पहचाना जाता है। पढ़े बेटे आगे भी। मगर तुम रबी ना कहलाओ, और मगर लिखा है कि तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है, तुम्हारा उस्ताद एक ही है, और तुम सब भाई हो, और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, और जमीन पर लिखा है कि किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है, तुम्हारा बाप एक ही है, जो आसमानी है,
जो आसमानी है, और ना तुम हाथी कहलाओ, ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हाथी एक ही है, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है, लेकिन जो तुम में बड़ा है, वो तुम्हारा खादम बने, और वो तुम्हारा खादम बने। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बहनाएगा, वो छोटा किया जाएगा। और जो शख्स, ये बेटी बिदिया नहीं कहती, मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है कि जो इंसान अपने आप को बड़ा कहलाएगा और वो छोटा किया जाएगा। आज मेरे बहनों और भाइयों, थोड़ा सा हमें कोई नॉलेज मिलता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। यीशु मसीह आसमान का, जमीन का अख्तियार उसके पास था, लेकिन वो अपने आप को हकीर और निकम्मा जानता था, इसलिए उसने गधे की सवारी को अपने लिए इस्तेमाल किया। गधे को अपने लिए इस्तेमाल इसलिए किया कि ताकि जितने बड़े बादशाह होते थे वो पहले चांद गाड़ियों में और घोड़ों की सवारी पर वो जाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को अपने लिए इस्तेमाल किया। क्यों किया? कि वो सबसे बड़ा था, लेकिन उसने अपने आप को आज़ाद कर दिया, हलीम कर दिया, फरोतन कर दिया। इतना फरोतन किया हमारी माओ ने, बहनों ने, अपने सर के दुपट्टे नौजवानों ने, जब वो रास्ते पे आ रहा था तो अपने सर के दुपट्टे उतार कर रास्ते में उनके लिए बिछा दिए। इतना किस कदर उसको प्यार किया। आज हम चर्च लगता है, हम अपने घर से निकलकर चर्च के अंदर आना पसंद नहीं करते। मैं खुदा का खादम हूं और मुझ पर भी ये बात लागू है, क्योंकि लिखा कि जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा और गुनाहगार का बेदीन का क्या ठिकाना होगा। हमारी बीवी खुद लेट आती है चर्च में, मैं हर वक्त उसको डांटता हूं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाहर से लोग आकर मेरी बारगाह में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन बादशाह के बेटे और बेटियां बाहर रहेंगे। और लिखा है इफिसियों 5 बाब की 16 आयत में कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमारी जान की फिक्र नहीं, खाने की फिक्र है, ड्रेस की फिक्र है, अच्छे कपड़े लेने की फिक्र है, गाड़ियां लेने की फिक्र है, प्लाट लेने की फिक्र है। मेरे बहनों और भाइयों, लिखा कि इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले, अगर वो अपनी जान का नुकसान करे तो उससे क्या फायदा। खुदा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एक काम फर्ज किया कि हम काम करते, अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, हमारा काम है। आज चर्च का वक्त है, संडे का दिन है। जैसे हम फर्ज किया 7 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे उठे, 1 घंटा बच गया आपके पास। जब 1 घंटा बच जाएगा तो उस घंटे के वसीला से आप बहुत ज्यादा कुछ काम जितना भी होगा और वो करेंगे। लेकिन जब हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो कैसे आगे आएंगे? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये लोग दीनदारी की वजह तो रखते हैं, मगर खतों में लिखा है कि ये लोग दीनदारी की वजह तो रखते हैं, मगर उसके असर को कबूल नहीं करते। उसका असर खुदा का कलाम है, उसका असर रूह कुद्दस है। पढ़े बेटे आगे भी। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और लिखा कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा और वो बड़ा किया जाएगा। ऐ रियाकार, ऐ रियाकार, फकीरों और फरीसियों, यीशु मसीह ने कहा कि तुम पर वसोस, रियाकारों, फकीरों, फरीसियों, तुम पर वसोस। वसोस के साथ यीशु मसीह ने कहा है, आज जब स्कॉलर खुदावंद के मज़हब पर खड़े होते हैं तो पहले वो सोचते हैं कि हमारा ड्रेस, हमारा 3 पीस अच्छा होना चाहिए, टाई बड़ी होनी चाहिए, चेहरे को बहुत खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन खुदा मेरे बहनों और भाइयों, इंसान के चेहरे को नहीं देखता, खुदा अंदर के ख्यालों को जानता है। खुदा इंसान के दिल पर, इंसान के कैरेक्टर पर, इंसान के रवैये पर, उसके किरदार पर निगाह करता है। ड्रेस जैसा भी हो, खुदावंद को ड्रेस की जरूरत नहीं, खुदावंद को आपकी जान की जरूरत है, दिल की जरूरत है। लेकिन कि जो अपने आप को बड़ा कहलाएगा और वह छोटा किया जाएगा। पढ़े बेटे आगे। कि आसमान की
की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, आसमान की बादशाही लिखा के लोगों पर बंद करते हो,